Hello students. Yesterday we studied about the nutrition and the parts of human digestive system. Now we will discuss about the detailed structure of human digestive system. Yesterday in last class we already discussed that human digestive system has two parts, alimentary canal and digestive gland. And alimentary canal has following parts. Alimentary canal started with mouth, which opens into buccal cavity. Mouth is a transverse slits. It transverse slits bounded by two soft movable lips, and it's open into buccal cavity. Buccal cavity opens into pharynx and pharynx open into esophagus. Now esophagus open into stomach. Stomach opens into small intestine. Small intestine has three parts, that is duodenum, next part is jejunum, and third part is ileum. Three parts called small intestine. Now, small intestine opens into large intestine. This part is called cecum. Cecum attached with colon, and the end part of colon is opens into rectum. And last opening of alimentary canal is anus. This is called large intestine. Mouth, then buccal cavity. Buccal cavity opens into pharynx. Pharynx opens into esophagus. After esophagus, stomach is present. Stomach opens into small intestine. It has three parts: duodenum, jejunum, and ileum. Finally, ileum opens into large intestine, which made up of cecum, colon, and rectum. And last opening of alimentary canal is anus. This is called appendix. Now, second part of human digestive system is digestive glands. Human digestive system has three digestive glands. It is salivary gland, there are three types of salivary glands. Now, second digestive gland is liver. It has gallbladder. It has gallbladder which opens into duodenum by bile duct. This is called bile duct. This is called bile duct. And third digestive gland is pancreas, which opens into duodenum by pancreatic duct. And this is complete digestive system. Now we will discuss in detail. Mouth is a transverse slit bounded by two soft movable lips. Two lips से covered structure होती है. It opens into buccal cavity, or we can say oral cavity. Oral cavity has
teeth and tongue. Teeth, dentines, it is also these are also called dentines, present in both the jaws. Teeth are present in both the jaws. When teeth embedded in jaws called thecodont. In human being जो टीथ होते हैं वो जॉ की सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, अंदर तक धसे हुए होते हैं इस तरीके से एम्बेडेड, तो इस टर्म को कहते हैं हम थीकोडोंट. टीथ आर डेवलप्ड इन टू सेट्स, टू सेट में डेवलप होते हैं. इस टर्म को बोलते हैं डायफायोडोंट. दिस इज कॉल्ड डायफायोडोंट. एंड टू सेट्स, विच टू सेट्स? मिल्की टीथ और टेम्परेरी टीथ. मतलब वो वाले जो जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, वो जो परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं अप टू 5 years, 5 years तक होते हैं. देन और नंबर इन 20 इन नंबर, टोटल 20 होते हैं. और आफ्टर 5 years ये टूट जाते हैं और इनकी जगह पर परमानेंट टीथ और सक्सेशनल टीथ ले लेते हैं आफ्टर 5 years, और इनका नंबर होता है 32. इसलिए टू सेट्स में होते हैं ये टीथ, इसलिए दिस इज कॉल्ड डायफायोडोंट. नेक्स्ट, परमानेंट टीथ are of 4 types. डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं हम हेट्रोडोंट. On the basis of their function and their size and their shape, teeth, permanent teeth divided into 4 parts. First is incisors, canines, premolars and molars. Incisor denoted by I. 2/2 means in upper jaw 2 set of incisors present and in lower jaw 2 sets of incisors are present. Function of incisors are bite the food. फूड को काटने का काम करते हैं. सामने वाले जो टीथ होते हैं ऊपर और नीचे, इनका काम होता है फूड को बाइट करना, काटना. नेक्स्ट, कैनाइंस. कैनाइंस डिनोटेड बाय C. One set is present on each jaw. एक सेट ऊपर एक सेट नीचे प्रेजेंट होता है. इनका मेन फंक्शन होता है टीयर द फूड. मेनली ये कार्निवोरस एनिमल्स में बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कि चीरने का काम करते हैं, तो वहाँ पर ये हेल्प करते हैं उन्हें चीरने या फाड़ने का, टीयर द फूड. नेक्स्ट, प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स टू सेट प्रेजेंट इन बोथ जोस, अपर एंड लोअर, टू सेट्स ग्राइंड द फूड. इनका काम होता है फूड को पीसना. एंड लास्ट वन इज मोलर्स डिनोटेड बाय M. 3 and 3. ऊपर वाले सेट में भी 3 होते हैं और नीचे वाले जॉ में भी 3 सेट होते हैं, ऊपर नीचे. एंड ग्राइंड द फूड. इनका काम भी क्या होता है? फूड को ग्राइंड करना होता है, इसको पीसने का काम करते हैं. तो परमानेंट टीथ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: इंसाइजर्स, canines, premolars and molars. Now, dental formula of teeth. Permanent teeth, 1/2 of upper jaw upon 1/2 of lower jaw. अगर हम ऊपर वाले जॉ की बात करेंगे तो अगर हाफ पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 इंसाइजर्स अपर पार्ट में, 2 इंसाइजर्स लोअर पार्ट में. देन 1 कैनाइन अपर पार्ट में, 1 कैनाइन लोअर पार्ट में, 2 प्रीमोलर्स अपर पार्ट में, 2 प्रीमोलर लोअर पार्ट में. एंड जो मोलर्स होते हैं वो 3 ऊपर और 3 नीचे होते हैं. तो हमने हाफ सेट लिया, इसलिए इसको फुल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 32, यानी 8 टीथ ऊपर 8 टीथ नीचे, टोटल हो गया 16 टीथ. मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हाफ सेट बात की थी, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 32 टीथ किसमें प्रेजेंट होते हैं? परमानेंट टीथ. बट इन वी कैन से जो एडल्ट होते हैं उनमें, पर जो चाइल्ड्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, किड्स होते हैं, उनके अंदर जो मिल्की टीथ होते हैं 2102. प्रीमोलर्स एक भी प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है उनमें जब मिल्की टीथ होते हैं तब. और जो मोलर्स होते हैं वो भी एक एब्सेंट होता है, मीन्स जिसे हम विजडम टूथ भी कहते हैं, वो आफ्टर 5 years, मतलब वो आफ्टर 30 years आते हैं, लेकिन किसी में जल्दी भी आ सकते हैं ऐसा.
तो ये जो एक मोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो टोटल में जो दांतों की यानी टीथ की जो नंबर होता है वो 20 होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट। खुद में भी आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि आपके जो टीथ हैं वो जॉ के अंदर एम्बेडेड है, तो वो रूट से एम्बेडेड होते हैं। जो पार्ट गम्स में होता है, जो अंदर की तरफ एम्बेडेड है वो रूट है। जो गम्स में होता है, जो हमें थोड़ा बाहर दिखता नहीं है लेकिन हमें यहाँ महसूस होता है गम्स क्या, उसे नेक कहते हैं। और जो विजिबल पार्ट्स होता है, आउटर पार्ट, इट इज क्राउन। आउटर पार्ट ऑफ कॉल्ड क्राउन कवर्ड विथ हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेमल। वाइट कलर का जो पार्ट होता है ये पूरा, दैट इज कॉल्ड इनेमल। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, सबसे हार्ड पार्ट होता है। डेंटाइन प्रेजेंट बीनीथ द इनेमल। इनेमल के जस्ट नीचे की तरफ डेंटाइन प्रेजेंट होता है, ये बोन लाइक पार्ट होता है। एंड बिलो द डेंटाइन अ पल्प कैविटी इज प्रेजेंट। इट कंसिस्ट पल्प। पल्प में क्या क्या प्रेजेंट है, पूरा पार्ट पल्प है। एंड इस पल्प में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पल्प कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। जो टीथ को, जो दांतों को ब्लड सप्लाई हो रहा है वो इस वाले पार्ट में सप्लाई होता है, और जो नर्वस यानी ब्रेन से जो कनेक्शन है, नर्वस सिस्टम से जो कनेक्शन है वो भी इस वाले पार्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड पल्प कैविटी और पल्प। नाउ नेक सराउंडेड बाय गम्स। जो ये जो गम्स बने हुए हैं, इन गम्स के अंदर जो पार्ट है दैट इज नेक। रूट इज द लोअर पार्ट, जो पूरे टीथ को पूरे सॉकेट के अंदर पकड़ के रखती है, एम्बेडेड इन जॉ, कवर्ड बाय सीमेंट। और जो इसके ऊपर पार्ट लगा हुआ था दैट इज कॉल्ड सीमेंट। और यहाँ पर जो कैनाल है उसे कहते हैं हम रूट कैनाल। ये जो होती है होल्ड करके रखती है टूथ को जॉ के अंदर, रूट का ये काम होता है। टोटल फंक्शन ऑफ टीथ, पूरे टीथ का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन हमें पता है मैस्टिकेशन, यानी कि जो हमारा फूड है बार बार उसको च्विंग करके फाइन पेस्ट में कन्वर्ट करना। तो हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड विच इंक्रीजेज इट्स सरफेस एरिया फॉर द बेटर एक्शन ऑफ एंजाइम। जितना ज़्यादा फाइन पेस्ट बनता जाएगा उतना ज़्यादा फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे एंजाइम्स जो हैं वो उस पर ज़्यादा अपना एक्शन शो कर पाएंगे, क्योंकि उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो एंजाइम एक्शन भी बढ़ जाएगा। Now, the roof of buccal cavity is made up of anterior hard palate। अगर हम buccal cavity की पूरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो अपर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट, मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट। ऊपर वाला जो पैलेट होता है बहुत हार्ड होता है। पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट, नीचे की तरफ देखेंगे तो हम सॉफ्ट पैलेट होता है। लेटरल साइड इज मेड अप ऑफ मस्कुलर चिक्स, दोनों तरफ चीक्स प्रेजेंट होते हैं। एंड टंग इज सिचुएटेड एट वेंट्रल साइड, और वी कैन से ऑन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की फ्लोर पर एक टंग प्रेजेंट होती है। टंग जो होती है इसको लिंगुआ भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिंगुआ। इट हैज टेस्ट बड्स। इसके ऊपर छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं सरफेस ऑफ द टंग विच आर सेंसरी टू टेस्ट। इससे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, जैसे बिटर है या कोई स्वीट टेस्ट है, खट्टा, जो भी तरीके का टेस्ट होता है वो हमें इस टंग से पता चलता है। टंग इज अ थिक मस्क्यूलो सेंसरी ऑर्गन। बहुत थिक मस्क्यूलर, पूरी मसल्स की बनी हुई होती है हमारी टंग, बहुत थिक होती है, मोटी होती है। मस्क्यूलो सेंसरी, मसल्स की बनी हुई सेंसरी ऑर्गन है जिसको कि टेस्ट के सेंस का पता चलता है। इट्स पोस्टीरियर पार्ट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय अ सॉफ्ट लिगामेंटस फोल्ड कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेनुलम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो टंग होती है हमारी पीछे से जुड़ी हुई है, मीन्स पोस्टीरियर पार्ट टंग का जो पीछे वाला पार्ट है टू द अटैच्ड ऑफ द फ्लोर, जो हमारा पैलेट है नीचे वाला उसकी फ्लोर से जुड़ी रहती है बक्कल कैविटी की बाय अ सॉफ्ट, जो एक लिगामेंटस फोल्ड होता है और उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से टंग जो है वो फ्रेनुलम से हमारे मुंह में जुड़ी हुई होती है, क्योंकि सिर्फ हम इसे आगे से बाहर निकाल सकते हैं, पीछे से अटैच्ड है। तो जो पोस्टीरियर एंड पे जिससे अटैच्ड है दैट इज कॉल्ड फ्रेनुलम, लिंगुअल फ्रेनुलम।
The dorsum of tongue is lined by a stratified epithelium and has lingual papilla. जो अपर पार्ट होता है टंग का, उसके ऊपर छोटे छोटे पैपिला प्रेजेंट होते हैं. ये हेल्प करते हैं हमारी टंग को कैसा बनाते हैं, रफ अपीयरेंस प्रोवाइड करवाते हैं. ये हेल्प करते हैं हमारी टंग की टेस्ट के लिए. लिंगुअल पैपिला जो होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है, मींस एपिथेलियम की लेयर पूरे टंग में प्रेजेंट होती है. और इसका मेन फंक्शन होता है कि फूड को होल्ड करके रखना. छोटे दाने हैं, तो ये जिससे कि हमारी जो टंग होती है वो स्मूथ नहीं होती, तो सलाइवा है या फिर फूड है वो इसके अंदर होल्ड रहता है, वरना वो फिसल के बाहर गिर सकता था. तो इसके लिए काम में आती हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग. इट इज मस्कुलोसेंसरी ऑर्गन, मेन पॉइंट. एंड सेकेंड पॉइंट इज अटैच्ड विद फ्रेनुलम बाय बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी में फ्रेनुलम से अटैच होती है. नाउ फंक्शंस ऑफ टंग. इट हेल्प्स इन इंजेक्शन, मीन्स फूड को इनटेक करने में हेल्प करती है. बिना टंग को बाहर निकाले आप फूड इनटेक नहीं कर सकते. आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं. जब भी आप मुंह खोलते हैं खाना रखने के लिए, आपकी जीभ बाहर आके उसे होल्ड करती है. तो इट हेल्प्स इन इंजेक्शन. च्युइंग, जब हम खाने को च्युइंग करते हैं तो बार बार हमारे टीथ के बीच में ले जाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है टंग. अगर टंग काम में नहीं आएगी तो जो खाना है वो टीथ के बीच में बार बार च्युइंग करने के लिए नहीं जाएगा. सलोइंग ऑफ फूड को जो सलो कर रहे हैं, निगल रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं हमारी बक्कल कैविटी से, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल टंग होती है. अगर टंग को आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप फूड को अंदर नहीं ले जा सकते. टेस्टिंग ऑफ फूड, यह मैंने बताया पहले भी कि इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. सेंसरी है, सेंसरी टू टेस्ट मीन्स इसके ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है. जो फूड का जो डिफरेंट टाइप का टेस्ट है वो हमें टंग की वजह से पता चलता है. क्लीनिंग ऑफ टीथ, दांतों को साफ करने में, अगर दांतों में कुछ अटक गया है, कुछ फंस रहा है, तो हम उसको टंग की हेल्प से साफ कर सकते हैं. ना मिक्सिंग ऑफ फूड, पूरे फूड को प्रॉपरली मिक्स करना, मेस्टिकेशन करने के में हेल्प करना. और जो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही हैं, क्योंकि हमें पता है बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो सलाइवा सिक्रीट करेंगी. तो जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है उसको फूड के अंदर प्रॉपर मिक्स करना, इसमें हेल्प करती है हमारी टंग. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज स्पीच. इसका में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्पीच. हमारे बोलने में भी टंग हेल्प करती है. अगर हमारी टंग ना वर्किंग ना हो तो हम बोल नहीं पाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी हैज़ 2 पार्ट्स, टीथ एंड टंग. टीथ में भी हमने डिफरेंट टाइप के पार्ट्स को डिटेल में किया, एंड टंग को भी हमने डिटेल में उसके फंक्शन और सब. तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो फंक्शन ऑफ टंग, फंक्शन ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, डेंटल फार्मूला, ट्रिकोडॉन्ट, डायफाइडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट्स, जो टर्म से उन पे क्वेश्चन आता है. आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.